सर जैसे क्योंकि आपने 36 साल काम किया है तो आपने देखे होंगे इंडियन आर्मीज़ के कैसे जवान होते हैं, कैसा काम करते हैं। And SSB, Shruti, is a test of personality. या सर तो वो कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो बच्चा एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उससे ज़रूरी होते हैं सीखना और वो डेवलप कर सकता है समय के साथ। जो एसएसबी की हम बात कर रहे हैं तो एसएसबी में ये होता है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी मतलब कम होता है। एक चिंगारी होनी चाहिए आप में टू प्रूव योरसेल्फ कि आई कैन डू दिस। तो सर एक्चुअली एक डिबेट चल रहा है कि जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ा भी देंगे तो उसकी वजह से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। सॉरी प्लीज विथड्रॉ योर वर्ड्स। 36 साल, 10,000 से ज़्यादा एरर फ्री उड़ानें और कई ऐसी चीज़ें जो आप जिनके बारे में नहीं जानते होंगे। हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे जो IAF है उसकी रीढ़ की हड्डी बने हैं। जब आसमां पर लोग भरोसा कर रहे थे उसके पीछे एक नाम गूंज रहा था, एयर वाइस मार्शल मिस्टर प्रवीण कुमार, और आज हमारे बीच वही मौजूद हैं। 1981 में इन्होंने ज्वाइन किया जिसके बाद उन्हें AVSM और VSM यानी अति विशिष्ट सम्मान से भी नवाजा गया और इनको सम्मान से नवाजा गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने। तो सर हम आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि आप जो एरोनॉटिकल इंजीनियर एज अ काम किए हैं इन IAF, हाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड। Okay, first and foremost, thank you very much, Shruti, for the invite. And very nice to see a young girl doing journalism. Thank you so much, sir. And taking up this interview. When it comes to my journey, I actually belong to Indore. Yeah. I did my engineering because my father was posted out from Indore to Gwalior, and I did my engineering from MIT as Gwalior. And thereafter, I did my MTech and MBA from Roorkee, IIT Roorkee. Now, that time it was Roorkee University. And fortunately, it was just a luck that University Entry Scheme team of Indian Air Force, they came to Roorkee for campus interview, and during initial interview, I got selected. And they offered me to come to the SSB Dehradun. There also, again good luck that I was selected and I joined Air Force in 1981. Let me tell you one thing very clearly. Before going for SSB and during the SSB, I had no idea what Air Force is. Okay. And what role I am going to play in Air Force as an aeronautical engineer. I just thought, okay, let us go for the experience. And since our employment exchange, that senior executive, he was after me, no, you must appear. So under his pressure, I appeared for this exam and I cleared it without any idea. When I got selected after that medical, and then my journey has been 36 years, very long journey, and with lots of ups, good recognition, and I'm very, very happy to say that today what you are seeing me is only because of Air Force. So started with throughout my life I was in fighter aircrafts. In between somewhere trainer aircraft. Started with Ajit and Nat Hunters. Thereafter shifted to MiG-29. Then I was sent to France for a very long period for training on Mirage engine. And then finally Hawk and up Mirage. Okay. These are the fields, the aircrafts on which I have performed as an aeronautical engineer. And I was specially trained on armament, weapons. Because I did another MTech from Indian Air Force in armament, MTech in armament from Pune University. So I became Assistant Chief of Indian Air Force Air Staff as weapons, Assistant Chief of Air Staff Weapons. And served there for 2.5 to 3 years during the period of 2013 to 2016 before retirement. Okay.
सर जैसे क्योंकि आपने 36 साल काम किया है तो आपने देखे होंगे इंडियन आर्मीज़ के कैसे जवान होते हैं, कैसा काम करते हैं, और आप खुद एज अ रिक्रूटर भी काम किए हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो आपको लगता है कि दे आर गुड फॉर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए हम उन्हें रिक्रूट कर सकते हैं, और यदि वो एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो उस एसएसबी को क्लियर करने में 100% अपनी जान लगा देंगे एंड दे विल क्लियर इट? ऐसा Fantastic, very, very well drafted and very well articulated question. There is a recruiting agency. I'm using this word. It is a testing board which is called as a service selection board. आपने बोला SSB. There are many of them. And SSB, Shruti, is a test of personality. या They select best out of the rest. Your personality, your attitude, your team compatibility, your group dynamism, these are the areas, including positive attitude, these are the areas which are being assessed during your SSB. It's a 5-day testing, very unique, very unique. इस तरह की टेस्टिंग किसी और एस्टैब्लिशमेंट में नहीं होती है, and which includes psychological test, intelligence test and team compatibility test, group testing. तो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है कि इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। पर्सनालिटी एक छोटा सा वर्ड है, बट इट इनकम्पासेस मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। इनफैक्ट इसके डिटर्मिनेंट्स भी बहुत सारे हैं। आप किस सिचुएशन से आ रहे हैं, आपकी हेरिडिटी कैसी है, आपका पारिवारिक जो नर्चरिंग है वो कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो ऑल दिस थिंग्स विल अफेक्ट योर पर्सनालिटी। सो आई वुड सजेस्ट दैट ऑल दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बिकम कमीशन्ड ऑफिसर आइदर इन आर्मी or Indian Navy or Indian Air Force, they should first work on developing their personality. Along with that, orating skills or communication skills and positive attitude. Now, if you have somebody known to you in your family or in and around, उसकी मेंटरिंग की रिक्वेस्ट कीजिए, और या फिर आप थोड़ी सी मेंटरिंग बाहर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस, गो फॉर मेंटरिंग, केवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की। ओके, बिकॉज दैट इज वन थिंग विच विल आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगा। सर तो वो कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो बच्चा एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उससे ज़रूरी होते हैं सीखना और वो डेवलप कर सकता है समय के साथ? दीज आर कॉल्ड एज अफसर लाइक क्वालिटीज, OLQ in military terminology. There are many things. Number one is speed of decision, resource management, positive attitude, your communication skills, your leadership qualities, and sense of belongingness, not only for your country, I mean a sense of responsibility for your country, for your superiors, and for your juniors also. So these are certain important things which are required for you to develop before you go for the SSB exam. मैंने देखा है, मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं बच्चे कि दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द रिटन एग्जाम, NDA, FCAT, CDS, दे स्टडी फॉर 1 year 2 year, पूरी मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट पे एनी अटेंशन टू डेवलप दीज एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको बोले हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेजेस में नहीं किया जाता, स्कूल्स में नहीं किया जाता, बहुत कम। इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, या तो परिवार के किसी सदस्य का जो कि मैच्योर्ड है या मिलिट्री बैकग्राउंड से है या वेल एजुकेटेड है, और या फिर आप बाहर किसी इंस्टीट्यूट में जाइए और थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स का एक मॉड्यूल करिए। तो चांसेस 50% आपके बढ़ जाते हैं।
सर एक जो एसएसबी की हम बात कर रहे हैं तो एसएसबी में ये होता है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी मतलब कम होता है, क्योंकि जब 2000 सीट्स पे बैठते हैं तो उसमें से वैकेंसीज यदि हम बोले तो 10-15 से ज़्यादा अगर मैक्सिमम होता है तो 20, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। वहीं एक कोर्ट ऑर्डर आया है फ्रॉम गवर्नमेंट कि हो सकता है, अभी वो एकदम फिक्स नहीं है, बट हो सकता है कि आगे चल के विमेंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए बढ़ावा दिया जाए, जिस पर काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? पहली बात तो ये है कि पिछले करीब 10-12-15 साल में देयर हैज बीन ए ह्यूज अपवर्ड प्रोग्रेस एज फार एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स। मैंने देखा है कि जब मैं रिटायर हुआ था उसके पहले हार्डली 30-40 महिलाएं एयरफोर्स में थी। आज की डेट में 1800 है, हो सकता है ज़्यादा हो। सो धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। But there are certain, necessary requirements which are required to be fulfilled by the female candidates when they join armed forces. As far as vacancies are concerned, yes, you are right. Lot of effort is being made to increase the quota as far as intake is concerned for the female candidates. आपने एनडीए में देखा होगा, एनडीए में अभी लड़कियों का चालू हो गया है, सैनिक स्कूल में हो रहा है, इसी तरह से 10+2 एंट्री में भी होने वाला है। तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो सर एक्चुअली एक डिबेट चल रहा है कि जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ा भी देंगे तो उसकी वजह से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। सॉरी प्लीज विथड्रॉ योर वर्ड्स। जी। No question. I have worked as a commanding officer, as a air officer commanding, and I had a privilege of having, I am using this word, privilege of having female officers working under me, both the places. जी। And then at various other units, they were my colleagues. My assessment is completely different. These girls are highly capable बिल्कुल of delivering the results effectively, efficiently, and without compromising the quality. एंड ये So there चीज़ is no, I will not, I mean saying that कि women का performance, women के आने से performance कम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। जी, और ये आप अपने 36 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद कह रहे हैं। 36 ईयर्स में पहले 20 साल 25 साल तो महिलाएं थी नहीं जी। अब तो अग्निवीर में भी महिलाएं जा रही है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, आई एम रिटायर्ड, कि परफॉर्मेंस महिलाओं की कुछ हद तक कुछ फील्ड में इन डिफेंस फोर्सेस पुरुषों से ज़्यादा अच्छी है। जी। यस, कुछ फील्ड ऐसी है जहाँ जैसे इन्फेंट्री हो गया या आपको एक्चुअल वार लड़ना है, बॉर्डर पे खड़े होना है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, देयर आर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद द महिलाएं, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। But otherwise, if they are in technical branch, if they are in logistic branch, if they are in administration, medical branch में तो कई सालों से हैं। जी। एयर मार्शल तक बन चुकी है। बिल्कुल। मेडिकल ब्रांच में तो महिलाओं की परफॉर्मेंस किसी भी ये सोच ही नहीं है। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उनकी ये सोच नहीं कि महिलाओं की वजह से परफॉर्मेंस खराब हो जाएंगी। लड़कियां अभी राफेल उड़ा रही हैं। बिल्कुल। मेरी एक स्टूडेंट है, वो पिलाते उड़ा चुकी है, अब वो शी इज नाउ शिफ्टेड टू MiG-29। तो कमी कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज टू गियर अप टू हैंडल सच ए लार्ज चंक ऑफ महिलाएं, एंड वो थोड़ा सा पैरिटी हो जाती है क्योंकि पुरुष शुरू से बहुत ज़्यादा हैं नंबर में। अब आप देखिए मार्च पास्ट में देखिए 26 जनवरी का मार्च पास्ट होता है, अभी देखिएगा 2 दिन बाद, तो जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं तो उसमें 2 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, बट बाकी सारे मेल हैं। तो दैट गर्ल हैज टू एडजस्ट विद दैट एनवायरनमेंट ऑफ मेल डोमिनेटेड स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड साइमल्टेनियसली द मेल हैज टू चेंज देयर मेंटेलिटी। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम केवल ये कि ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे इसको बढ़ाएगा। ये एक झटके में नहीं हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया कि आप 500 वैकेंसी कर दो। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड पॉइंट श्रुति, आई वांट टू करेक्ट यू, माय असेसमेंट इज कि जो गर्ल्स हैं
in general public, they are also not opting for it. It is only through NCC Girls Squadron. 90% of the girls who are appearing in these exams are through NCC background. But जनरल पब्लिक में कम है, अपीयर कम करती है, और करती भी है तो फिर एसएसबी क्लियर नहीं कर पाती है. सो मे बी बिकॉज फैमिली इश्यूज होते हैं कई बार, और एज यू नो कि सोसाइटी में कई बार रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है, तो दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम. सो वी कैनॉट से दैट कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है. भाई इंडिविजुअली नहीं आना चाहता या कम आते हैं तो क्या करा जा सकता है. सर बट एक्चुअली डिबेट यही था कि अगर हम बढ़ा देते हैं, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी करती हैं, जैसे आपने बताया कि अगर अभी हम एसएसबी में देखते हैं या एनडीए में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं. इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो मैं जानती हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं, और उसके बावजूद क्या होता है कि कई लोग उन्हें मतलब दबाने की कोशिश करने लगते हैं कि यहाँ पर आप सही नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए यह पूरी बात की थी. वो एक फोबिया है, एक माइंडसेट है, और मैं उसको ज़्यादा डिलिबरेट नहीं करना चाहता. मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है जी. एंड सर, या तो महिलाओं ने मेरे अंडर में काम किया है, या मेरी सुपीरियर थी, या मेरे साथ में मेरी कलीग्स थी. आई हैव फाउंड देम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल. जी. सो दैट्स, यही मुझे जानना था कि आखिर जो इंडियन आर्मी में हमारी महिलाएं जो काम कर रही हैं और अब जो एस्पायर कर रही हैं वहाँ पर जाने के लिए, तो वो यही बातें सुनकर जो आपने कही कि महिलाएं काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, तो वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, काफ़ी फील्ड्स हैं, उन्हें करना चाहिए और वे कर सकती हैं. देखिए, इससे अच्छी सर्विस भारतवर्ष में, यू सी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अपनी जगह हैं, बट इससे अच्छी सर्विस जो आपको प्राइड देगी, रिकॉग्निशन देगी, जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देगी, जो आपको प्रोफेशनल एक एक्सपीरियंस देगी और प्रोग्रेस करने का मौका देगी. देयर इज अ अपवर्ड, यू नो, ग्रेजुअली यू गेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर स्टेटस, योर स्टेचर, योर अथॉरिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक नो अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉमिस इट. जी. सो इट्स अ वंडरफुल सर्विस. जी. व्हेन इट कम्स टू पर्क्स एंड पे, you know, today that cadet who is undergoing training in IMA or AFA or OTA is getting 58,000 rupees per month, and food free and rest of the everything is free. 58,000 without any expenditure. He doesn't have to do any expenditure. That is his money as a stipend as a cadet. Yeah. And now pay commission नया आने वाला है. तो my estimation is कि you know the young जो भी एस्पायरेंट है, जो ज्वाइन करता है, ही इज लाइकली टू गेट अलॉन्ग विद डीए एंड बेसिक प्लस अदर पर्क्स, विच इंक्लूड्स मिलिट्री सर्विस पे, विच इंक्लूड्स सो मेनी अदर थिंग्स. ही इज लाइकली टू गेट अराउंड 1.40. 26 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, 1,30,000, 1,50,000 रुपये उसको मंथली पर्क्स की बात करूँ तो, बट मैं पर्क्स पे नहीं जाता. मैं ये कहता हूँ कि इससे अच्छी सर्विस कोई नहीं है, जहां एक तरह से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है. रिमेंबर माय वर्ड, एश्योर्ड. सर, जैसे आपने एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के बारे में बताया, तो साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि जो लोग इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं, मतलब कई सारी सर्विसेज होती हैं, और लोगों को अब तक सिर्फ और सिर्फ फील्ड ट्रेनिंग के बारे में ही पता है. तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ऑर्डिनरी होता है, इन्फेंट्री होता है, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा. आई थिंक क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं समझ में आया. You want to know about the branches which are available? There are many branches. You can choose any graduate, first and foremost can apply to become a commissioned officer. Any graduate. और सर, क्योंकि आप ट्रेन करते हैं तो आप बच्चों को क्या ऐसा सिखाते हैं, क्योंकि आप नेशन बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी फीलिंग होती है जो आप बच्चों में इनकलकेट करते हैं कि वो क्योंकि एसएसबी क्लियर करना हर किसी की बात नहीं, एक देशभक्ति होनी चाहिए, पैट्रियोटिक फील होना चाहिए, तब जाके ही व्यक्ति इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स जैसी बड़ी पोस्ट के लिए काम करने के लिए तत्पर रहता है. तो वो ऐसी कौन सी फीलिंग होती है जो हर बच्चे में होनी चाहिए, और सिर्फ दिखावा ना हो, एक अंदर एक मेजर फीलिंग होती है देशभक्ति की, तो वो कौन सी फीलिंग है? देखिए, मैं देशभक्ति तक अभी नहीं आऊँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट आता है तो मैं उसको ये पहली सलाह, ये कैरियर है.
ठीक है। सो पहली चीज सबसे बड़ी है स्पार्क, एक चिंगारी होनी चाहिए आप में टू प्रूव योर सेल्फ कि आई कैन डू दिस, आई कैन क्रैक दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एग्जाम ऑफ एसएसबी। तो आई स्टार्ट फ्रॉम दैट। देशभक्ति और मात्र वो सब चीज़ें बात की बात है, वो ठीक है। वंस यू ज्वाइन, वंस यू आर इन यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली वो आपके ब्लड में आ जाएगी। जो मेरा मेंटरिंग प्रोग्राम है दैट इंक्लूड्स रिटन एग्जाम जैसे एफकेट, एनडीए एंड सीडीएस, एंड साइमल्टेनियस बिकॉज इट्स ए 5 hours सेशन ऑन सैटरडे एंड 5 hours ऑन संडे। तो 5 घंटे में 1.5 घंटा जो है वो उनका रिटन एग्जाम, और रिमेनिंग 3.5 to 4 hours आर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ओरेटिंग स्किल्स एनहांसमेंट, because these are the 2 factors which I explained earlier, which are very important for you as far as SSB is concerned. अगर आप पर्सनालिटी पे नहीं काम करेंगे, और इसीलिए मेरी जो स्ट्रेंथ होती है, मैं चाहे कितना भी प्रेशर हो जाए, मैं 40 से 41 बच्चे नहीं लेता हूँ। आई हैव टू वर्क ऑन ईच इंडिविजुअल। यू नो, यू आर ए मास जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, MBA की स्टूडेंट है, आपको स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ती है बच्चे की, हर बच्चे की। अगर मैं 200 बिठा लूँगा तो फिर मैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं असेस कर पाऊँगा। तो इनिशियली आई वर्क ऑन फाइंडिंग आउट व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, वीक एरियाज, and then try to work upon that and shape them, nurture them to improve. And results are very good, madam.